Namaskar and good morning everyone. Myself Rekha Salunche. I hope you all are safe, healthy and happy. It's my pleasure to welcome Honorable President, respected Principal Sir, respected all resource person and respected all participants from Maharashtra and other state in national webinar Let's Overcome Corona Crisis with Positivity. मित्रांनो, मागील काही महिन्यांपासून फक्त आपला भारत देशच नव्हे तर संपूर्ण विश्व एका मोठ्या संकटाने प्रभावित झालेले आहे. या संकटाचा सामना आपण मोठ्या धैर्याने तर करतच आहोत, पण या संकटातून दुसऱ्या अनेक संकटांची निर्मिती झालेली आहे. मग ते आर्थिक मंदी असेल, उद्योगधंद्यांवरील संकट असेल, बेरोजगारी असेल, तर काही देशांमध्ये अल्कोहोल ड्रग्ज घेण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे, आत्महत्या करण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. या सर्वांपेक्षा मोठं म्हणजे मागील काही दिवसांमध्ये मानसिक आरोग्याविषयक समस्या म्हणजेच मानसिक आजारांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणाने वाढलेले आहे. याविषयी काही नॅशनल इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूशन्सने आपली अभ्यासपूर्ण मते नोंदवलेली आहे. द युनायटेड नेशन हॅज वॉर्न that coronavirus could cause a global mental health crisis. According to our Indian Psychiatry Association, the patient related to mental health illnesses has increased by 20% during this period. The use of helpline numbers for domestic violence and child abuse has increased. This information indicates that our emotional and mental health has become weak due to this pandemic. आपल्या सर्वांना या संकटाचा प्रभावीपणे सामना करायचा असेल, यावर विजय मिळवायचा असेल, तर आपल्याजवळील सकारात्मकता म्हणजेच पॉझिटिव्हिटी या शस्त्राचा आपल्याला उपयोग करावा लागेल. अरुणिमा सिन्हा, दीपा मल्लिक, स्टीफन हॉकिन्स यासारखी असंख्य व्यक्तींची उदाहरणं आहेत की त्यांनी अतिशय प्रतिकूल परिस्थिती असताना, कोणत्याही आशेचा किरण नसताना देखील त्यांनी त्या परिस्थितीवर विजय मिळवला. तो केवळ म्हणजे स्वतःवरील आत्मविश्वासामुळे, स्वतःमधील जिद्द, चिकाटी, आशावाद असल्यामुळे. मित्रांनो, म्हणूनच आपण सर्वांना देखील आलेल्या या संकटाचा सामना आपण सकारात्मकतेने कसा करू शकतो याविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी आम्ही या वेबिनारचे आयोजन केलेले आहे. Friends, many persons have helped us for organize this webinar. Therefore, I wish to express my gratitude to them. I express my sincere gratitude to respected Mr. Amit Dada Patil, President of YCSP Mandal, and respected Principal Dr. A.R. Patil Sir for encourage and support us for organize this webinar. I express my sincere thanks to respected Dr. C.G. Deshpande Sir for sending greetings to this webinar. I am especially very much thankful to respected Dr. Avdesh Sharma ji, respected Dr. Shobna Abhankar ma'am, respected Dr. Vivek Balekar sir, respected Dr. Megha Deuskar ma'am for accepting our request and taking painful efforts for recording and sending your speeches in time. I am very much thankful to respected Dr. Shobna Abhankar ma'am and respected Dr. Arvind Burguza sir, ACPAC coordinator, for providing guidance and assistance for this webinar. And the most important part is participants. On the behalf of my college, I am deeply thankful to all participants from Maharashtra and other state. Thank you very much. Good morning everyone. Our college was established in 1971 with the view to spread higher education among the rural populations and distressed classes. The DDC college was started by Honorable late Dada Saheb Digman Shankar Patil, ex-MLA, Erandol. College offers
undergraduate courses. Along with the specialization Marathi, Hindi, English, economics, geography in that faculty, it has commerce and science wing also. Apart from this, PG courses run in chemistry and commerce. We also run BOP in software development. At present, our institute is marching toward the progress under the leadership of Dada Saheb Amit Rajendra Patil. Friends, firstly, I congratulate to Dr. E. Badgujar, ICAO coordinator, Dr. Rekha Salunke, and Mr. Sivaya Patil of Department of Psychological for running this national and useful webinar. The theme of the webinar, let us overcome the corona crisis with positively, is rightly chosen and need to horse. Today, we and whole world is suffering from these critical situations. People are disturbed psychologically. They have fear, anxiety, and uncertainty. These negative things can be removed with the help of positively. For this purpose, we have organized this type of the national seminar. I welcome to all participants from different states. I also express my sincere gratitude to the resource person for sharing their valuable thoughts in this national webinar. Thank you very much. As a president of college, I first of all congratulate Dr. A.R. Patil, the principal of college, the coordinator of college, Dr. Arvind Badgujar, and Department of Psychology, the HOD of department, Dr. Rekha Salunke, and her colleague, Sivaya Patil sir, for arranging such a beautiful, wonderful seminar on current and important issue like COVID-19, the pandemic. Whole world is not only struggling but also fighting against these worst conditions created by COVID-19, the pandemic. The people are mentally disturbed. There are thousands of doubts in the mind of people. We all people are losing our patience. We don't have the solution for COVID-19. People are puzzled in their mind. There are worries, so much worries in the mind of people. They are worrying about for their jobs, their health, their wealth, the financial condition. There is a fear in the mind of people for losing the jobs. There is a very much uncertainty in every relation. I think it's important to not only attend but also organize such webinar because it will be helpful for the people to have a strong mind and mental strength. They will have the direction how to fight against the situation created after COVID-19. We don't know the conditions, what will happen after the COVID-19 or post-COVID conditions. So the resource persons are also very well known. So I really appreciate the attempt made by the department, the institution, and I also congratulate the department and also the participant who are attending the webinar, and congratulate all of them. Thanks a lot. Namaskar. The first lecture of our webinar will be delivered by Dr. Avdesh Sharma ji. Friends, we are very lucky to have such an eminent personality and international speaker for this webinar. Dr. Avdesh Sharma is MBBS, BPM, MD, received a gold medal in psychiatry from National Institute of Mental Health and Neuroscience, Bangalore. He is a consultant well-being psychiatrist with over 35 years of clinical practice in Delhi. He has worked extensively with print, radio, and television, producing and anchoring several series
on mental health and well-being like Mindwatch and Mann Ki Baat. He has been the international lead on public education for the World Psychiatric Association, co-chair of the World Psychiatry Association section on spirituality and mental health, chair of the Public Education and Awareness Committee of Indian Psychiatric Society, International Distinguished Fellow of American Psychiatric Association, past President of Indian Association of Private Psychiatry, Indian Psychiatric Society, North Zone, and Delhi Psychiatric Society. He has received several awards for his contribution in the field of mental health, especially in public education and awareness building. He is also the founder, Mind Vision Enterprises, Managing Trustee, Rahat Charitable Medical Research Trust, Founder, Director, Better Minds and Mind Specialist. So friends, his topic for the webinar is Building Emotional Resilience. Let's get delighted by his intellectual speech. Respected Dr. Avdesh Sharma. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अवधेश शर्मा, एक साइकियाट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक जो कि करीबन 40 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हूं और को फाउंडर हूं माइंड स्पेशलिस्ट नामक ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि समाज में किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बढ़ावा दिया जा सकता है और उसके बारे में बात की जा सकती है बिना कलंकित हुए, विदाउट एनी स्टिग्मा एंड शेम। पिछले कुछ समय से हम सब एक आपदा को महसूस कर रहे हैं और इस समय वो आपदा जो है वो एक व्यक्ति तक, परिवार तक या एक जगह तक सीमित नहीं है। इसने क्षेत्रों के बाहर यानी स्टेट्स में, पूरे कंट्री में और असल में पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया है और उसी कारण से किस तरह से ये हमारे मन पे असर डालती है, किस तरह से इसकी वजह से अलग अलग तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं और इससे लड़ने के क्या उपाय हैं। आज का विषय है फाइटिंग विद द पेंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस कोविड-19 विद पॉजिटिविटी। मैं एक शब्द को बदलना चाहूंगा। फाइटिंग के बजाय अगर हम कहें को एग्जिस्टेंस विद कोरोना वायरस विद पॉजिटिविटी, यानी हम इसके साथ कैसे जिएं। हमारा बहुत सदियों से एक्चुअली ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी किसी प्रकार के कीटाणु हमारे शरीर में आते हैं या विश्व में होते हैं तो धीरे धीरे इंसान उनके साथ जीना सीख जाता है, उसकी प्रतिरोध क्षमता जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है और उसका उतना प्रकोप नहीं रहता जितना कि शुरू में होता है। जितनी भी महामारियां आई हैं और अगर हम पिछले कुछ वर्षों में देखें तो एड्स थी, उसके बाद सार्स था और इस तरह की, और अगर 8 से 100 साल पहले देखें तो इन्फ्लुएंजा की बीमारी आई थी, फिर कॉलरा की बहुत समय तक चलती थी। थोड़े समय बाद शरीर जो है वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देता है और जिससे हालांकि वो कीटाणु या वायरस शरीर में तो प्रवेश करता है लेकिन वो हम पे उतना असर नहीं डाल पाता। एक और चीज जो कि देखने में आई है और समझनी जरूरी है कि हर वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को इस तरह की तकलीफ होगी या वो वायरस उसके शरीर में जाएगा, उसकी वजह से सिर्फ बहुत थोड़े से परसेंटेज के लोग हैं जिन्हें किसी तरह की गंभीर बीमारियां होंगी। 70 से 80% लोगों को तो ये माना जाता है कि उनको कोई खास सिम्टम्स ही नहीं होंगे, जिनको कि एसिम्टोमेटिक केसेस कहते हैं। कुछ और को थोड़ी बीमारियां होंगी और करीबन 5 से 10% लोग ऐसे होंगे जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की या फिर आईसीयू की या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी।
क्योंकि ये एक नया वायरस है और उसकी वजह से हमारी अभी इससे लड़ने की, प्रतिरोध की शक्ति नहीं बढ़ी है। तो अगर बहुत ज़्यादा लोगों में ये जल्दी से फैल जाए तो समाज के बहुत बड़े हिस्सों को हॉस्पिटलों में जाकर इलाज करना पड़ेगा और उसकी वजह से पूरा जो हमारा ढांचा है उसमें बदलाव आएगा या उसे संभाल नहीं पाएगा। लेकिन जो लॉकडाउन होता है, जिसमें कि व्यक्तियों को एक ही जगह पे रहने की ज़रूरत होती है अपने घरों के अंदर या जिस भी क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में कुछ हद तक, जिससे कि वो दूसरों तक ना फैल सके, तो एक तरीका है बाहरी रूप से इससे लड़ने का, जिसके लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसके लिए कि जिसको 2 गज दूरी कहते हैं, या मास्क है, अपने मुंह को किसी प्रकार से कवर करना ताकि वो वायरस हमारे शरीर के अंदर ना जा सके, और हाथों को साफ रखना, अपने आसपास की साफ सफाई को रखना। तो हम बाहर से इसके अंदर हमारे शरीर में प्रवेश करने की जो ताकत है उसको कम कर देते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हमारी इससे लड़ने की जो शक्ति है, इम्यूनिटी है, वो अगर बढ़ जाए तो उसकी वजह से अगर ये थोड़ी मात्रा में, खासतौर पे उन लोगों में जिनमें कि किसी और तरह की बीमारी नहीं है, अगर ये जाएगा भी तब भी उसका उतना इन लोगों पर असर नहीं होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि हमारा मन है जो हमारे शरीर को चलाता है। अगर हम तनाव में हैं तो शोध द्वारा ऐसा देखा गया है, खासतौर पे जिनको कि साइकोसोमैटिक इलनेसेस कहते हैं या स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जिनमें कि अगर आप तनावग्रस्त हैं तो आपकी उन बीमारियों से लड़ने की ताकत, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है। और जो आमतौर की बीमारियां जैसे कॉमन कोल्ड है या बुखार है, और खासतौर पे और बीमारियां जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीजेस हैं, उनमें भी ऐसा देखा गया है कि वो लोग जो तनावग्रस्त हैं उनमें इन बीमारियों से लड़ने की ताकत और कम हो जाती है। तो आज के समय में और आने वाले समय में जहां पे कि हमें सिर्फ वायरस से नहीं लड़ना, हमें समाज की कई बुराइयों से भी लड़ना है। हमें समाज में जो अनिश्चितताएं आ सकती हैं, खासतौर पे काम को लेकर, खासतौर पे पैसों को लेकर, खासतौर पे जो ढांचा है जिस तरह से बना हुआ था उसको लेकर, हमें उनसे भी लड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो किस तरह से हम अपने मन को सशक्त रख सकें और किस तरह से हम अपनी आंतरिक भावनात्मक प्रतिरोध क्षमता को, यानी इमोशनल रेजिलियंस को बढ़ा सकें, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि वो कम्युनिटीज जिनमें कि आपसी मेल बहुत है, जिनमें कि एक दूसरे के साथ घनिष्ठता है, जो एक दूसरे की मदद करते हैं, जो दूसरे के दुख को बांटते हैं, उनमें इमोशनल रेजिलियंस ज़्यादा होती है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि अगर मन में मान लीजिए किसी तरह की अनिश्चितताएं चल रही हैं, आशंकाएं आ रही हैं, या किसी तरह की प्रॉब्लम्स को हम अकेले नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो एक समूह के रूप में हम उनसे जुड़ सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं जो इस समय मानव मन को ग्रसित किए हुए हैं? अगर हम पहले ये देखें कि कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ। सबसे पहली चीज हुई है कि बहुत ज्यादा लोग इस समय इकट्ठे मिलकर कोरोना वायरस के बारे में सोच रहे हैं और नकारात्मक रूप से सोच रहे हैं। आंकड़े जो बदलते जाते हैं रोजमर्रा में, कौन से देश में कितने केस हुए, कितने लोग मर गए, उसकी वजह से लोगों की जिंदगी पे क्या असर पड़ा, आने वाले समय में क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा, वगैरह वगैरह। जब ये बातें होती हैं तो इस इंफॉर्मेशन को लेकर हर व्यक्ति, चाहे जिस भी सोर्स से आए, और आजकल सोशल मीडिया का भी जमाना है, और उस वजह से थोड़ी सी भी कोई बात उठती है, लोग एकदम फॉरवर्ड करते हैं, दूसरों से सच मान लेते हैं और उस चीज को अपने मन में चलाना शुरू कर देते हैं। सच्चाई जीवन की ये है कि बहुत थोड़ी सी ऐसी चीजें होती हैं जिनका हमारे जीवन पर सीधा असर होता है। अगर किसी और देश में केसेस बढ़े हैं
लोगों की मौतें हुई हैं, दुखद घटना है, लेकिन मेरी या आपकी जिंदगी पर उसका कोई आज ही सीधा साधा असर नहीं होगा। मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे समाज के ऊपर, मेरे काम स्थल पे और आसपास के लोगों में और मेरे देश में उसका क्या असर होगा और किस पर कितना होगा, ये भी देखने की जरूरत हो जाती है। तो पहली चीज जो है कि अनिश्चितता जो फैलती है इस कारण से कि हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, खास तौर पे उन चीजों का जिन चीजों की मुझे रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत नहीं है। अगर हम ये समझ के कि मुझे किस प्रकार से अपने जीवन को चलाने के लिए कितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो हम उस इंफॉर्मेशन को कम कर पाएंगे, और जब कम कर पाएंगे तो उसकी जो प्रोसेसिंग है वो भी कम होगी, और जो मेरे माइंड के ऊपर और मेरे माइंड के थ्रू मेरे शरीर के ऊपर ओवरलोड हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। सबसे पहली चीज खुद के लिए चेक कर सकते हैं कि मैं सारा दिन में कितनी देर के लिए टेलीविजन देखता हूँ, रेडियो सुनता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, किस तरह की खबरों को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, कितनी गहराई से उस इंफॉर्मेशन में जाने की कोशिश करता हूँ, सोशल मीडिया पे किस तरह की चीज़ों को ढूंढता हूँ, किस तरह की चीज़ों को फॉरवर्ड करता हूँ, या मेरे मन पर किन चीज़ों का असर भी होता है और किन चीज़ों से मेरा मन भरा रहता है। अगर उसे हम कम करना शुरू कर दें तो जितनी चीज से हमें डील करना है वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज जो इसी कड़ी में जरूरी है कि आने वाले समय में क्या होगा, कितनी परसेंटेज सेंसेक्स गिरेगा, कितनी परसेंटेज इंडस्ट्रीज डाउन होंगी, जीडीपी कितनी होगी, कितने लोगों की नौकरियां जाएंगी, कितने लोगों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं भूलें कि हर आपदा में से अवसर निकलते हैं। ये जो बातें अभी फ्यूचर के बारे में हो रही हैं वो इस संदर्भ में हो रही हैं ताकि हम एक प्लानिंग कर सकें, लेकिन उसे सत्य मानकर उसके बोझ के तले अपने आप को डूबा महसूस करें, उसके लिए नहीं। तो किस तरह से आज के समय में मुझे उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है जिसको हम कहते हैं माइंडफुलनेस, यानी आज के समय में मेरे आसपास जो हो रहा है मैं सिर्फ उस पे फोकस करूं, बहुत ज्यादा फ्यूचर के ऊपर नहीं। इसी के साथ कई बार जो अपने आत्मविश्वास में कई बार हमारे में कमी होती है, उसकी वजह से, और पास्ट में अगर रही हो तो उसकी वजह से हमें कई बार लगता है कि मैं तो शायद दूसरों से कम हूं, या अगर जॉब मार्केट में प्रॉब्लम आएगी तो मैं शायद उसको उतना नहीं संभाल पाऊंगा क्योंकि मेरे में कुछ तरह की कमियां हैं, और उस वजह से आपकी अपनी अनिश्चितता जो है वो बढ़ जाती है। और उसी को सोचकर कई तरह की आशंकाएं हमारे मन में अपने बारे में, अपने परिवार वालों के बारे में और खासतौर पे समाज के बारे में निकलनी शुरू हो जाती हैं। वहां पर जो हमें एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ाकर मिलकर चलने की जरूरत होती है वो इस चीज में खो जाता है कि ये व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, ये कहीं मेरे खिलाफ तो नहीं है, या इसे कहीं बीमारी तो नहीं है, उसकी वजह से मुझे तो नहीं कुछ हो जाएगा, वगैरह वगैरह। एहतियात बरतनी जरूरी है, लेकिन उसके डर के तले जीना जरूरी बिल्कुल नहीं है। कई बार हम यही सोचकर बैठ जाते हैं कि आज जो हो रहा है वो क्या ठीक हो रहा है कि नहीं। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा अवसर है हम सबको, और ख़ासतौर पे मानवता को, थोड़ी देर के लिए, जिसको पॉज बटन कहते हैं, रुक कर आंकलन करने का। और यहाँ पे शुरुआत व्यक्ति से हो सकती है, क्योंकि जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसके आसपास के लोग बदलते हैं और उनकी वजह से फिर पूरी समाज और सृष्टि में बदलाव आता है। आंकलन ये करने की ज़रूरत है कि क्या मैं जिस तरह का जीवन जी रहा हूँ वो जीवन मेरे लिए और दूसरों के लिए सकारात्मक है कि नहीं। यहीं पर हम अपनी नकारात्मक सोच और भावनाओं को बदलकर सकारात्मक कर सकते हैं। जब भी समाज का कोई हिस्सा इकट्ठे उठता है
तो उसकी वजह से हर हिस्से में बदलाव आता है और वो हर हिस्से की बदलाव की वजह से पूरा समाज उठता है। शायद पिछले कुछ वर्षों में हमारे समाज के अंदर जो ऊंच नीच, भेदभाव, बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा और कुछ के पास बिल्कुल कुछ भी नहीं, ये जो समानताएं कम हुई हैं, इनकी वजह से जो सामाजिक बदलाव आए हैं या कुछ और तरह की नकारात्मक चीज़ें हुई हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज हुआ है, अगर और देखें तो जो एक माइंडलेस कंपटीशन हुआ है, बिना किसी कारण के दूसरों के साथ ईर्ष्या, द्वेष, नीचा दिखाने की कोशिश, पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, खासतौर पे ऑफिस पॉलिटिक्स, या आपस में जो जुड़ाव था परिवारों में और वो इकाई के रूप में उभरना शुरू हुआ है, या पड़ोसियों में या रिश्तेदारों में या दोस्तों में वो जो टूटना शुरू हुआ है, या जो छोटे परिवार बनने शुरू हुए हैं और उसकी वजह से जो कि एक सपोर्ट सिस्टम्स थे वो कम होने शुरू हुए हैं। इन 2 महीनों में जिसमें कि लॉकडाउन हुआ है, इसमें कि बहुत लोगों ने महसूस करना शुरू किया है कि हम बहुत कम चीज़ों के साथ जी सकते हैं, हमारी ज़रूरतें बहुत कम हैं, चाहे कपड़े की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे खान पान की हो, चाहे घूमने फिरने की हो, तो हमारी नीड्स कम हैं, लेकिन ग्रीड्स जो हैं उनकी कोई सीमा नहीं है। तो क्या ज़रूरत है और किस तरह से जितनी ज़रूरतें हैं हम एक परिवार के रूप में, एक समाज के रूप में और एक देश के रूप में किस तरह से एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करके फिर भी खुशी महसूस कर सकते हैं, फिर भी सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं, वो एक बड़ी चीज़ है जो कि पिछले कुछ दिनों में हम सबको सीखने को मिली है। ये समय वो भी रहा है जिसमें कि नई नई तरह की टेक्नोलॉजीज आई हैं, किस तरह से भागा दौड़ी की ज़िंदगी से दूर थोड़ा से हटके हम अपने पे समय दे सकते हैं, हम अपनों पे समय दे सकते हैं, छोटी छोटी खुशियों को बटोर सकते हैं, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के द्वारा किस प्रकार से हम चाहें तो एक बहुत बड़ा हमारा देश है, महान देश है, और कई तरह की डेमोग्राफिक, चाहे कि हमारे एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स है, स्किल्ड वर्क फोर्स है, सीखने की शक्ति है, ऊपर जाने की शक्ति है और इच्छा भी है। तो अगर हम इनको बढ़ावा देते हैं और टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, देखिए बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जैसे ही लोगों ने मूव अराउंड करना कम किया, ट्रैफिक कम हुआ, पोल्यूशन कम हुई, लेकिन काम चलते रहे। वर्क फ्रॉम होम कल्चर जिसको कहते हैं वो आया, जिसकी वजह से किस प्रकार से लोग एक दूसरे से जुड़ भी सकते हैं, काम हो भी सकता है, लेकिन अपने आप को बचाकर और दूसरों को बचाकर और हमारी रिसोर्सेज को बचाकर, जो कि और चीज़ों में काम आ सकती हैं, उसको कैसे सार्थक करना है, इसको भी हमने सीखा। तो ये जो चीज़ें हमारी इस दौरान में सकारात्मक हुई, पोल्यूशन कम हुई, हमारी नदियां जो हैं वो साफ होनी शुरू हुई, पशु पक्षियों ने चहकना शुरू किया, दूसरों के साथ मनमुटाव क्योंकि मिल नहीं रहे थे तो मिलने की लालसा थी, वो बेहतर होनी शुरू हुई। तो ये सब ऐसी उपलब्धियां भी रही हैं जिनको अगर हम चाहें तो जीवन का हमेशा के लिए एक हिस्सा बना सकते हैं, और अगर वो होता है तो हमारा मन भी शांत होना शुरू हो जाता है, और जो खुशी की उसके साथ में लहर आती है, उससे हमारे तनाव भी कम हो सकता है। तनाव अगर हम ये सोचें कि अरे लॉकडाउन कब खुलेगा, जब खुलेगा तो आगे की क्या स्थिति होगी, फ्यूचर में क्या होगा, ये चीज़ रहेगी इस रूप में कि नहीं रहेगी, उसका एक कारण भी रहता है कि हम जब किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं तो उस आदी होने के बाद हमें उस चीज़ को करने में थोड़ी सी सहजता महसूस होती है। जब भी किसी नए काम को किसी नए तरीके से करना होता है तो उसको करने में थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत होती है, लेकिन इंसान बहुत जल्दी से सीख सकता है।
एक छोटे बच्चे को अगर आप एक कंट्री में रखेंगे तो वहाँ की लैंग्वेज सीख जाएगा। अगर आपको उसको कोई स्किल सिखानी है तो बहुत आसानी से वो सीख सकता है। जब हम बड़े होते हैं तो धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क डेवलप होता है, माइंड भी जो उसके साथ है वो भी थोड़ा सा बेटर होना शुरू होता है, उसके कनेक्शंस जो हैं वो बनने शुरू होते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ कई तरह के भय भी बनने शुरू होते हैं, कई तरह के रिपीटेड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर भी बनने शुरू होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर हम बचपन में ही इस तरह के कुछ भयों को पाल चुके हैं या हर छोटी छोटी चीज़ पे घबरा जाते हैं या सेंसिटिव हो जाते हैं या उदास हो जाते हैं, तो वो भी हमारा एक सोचने का ढंग सा बन जाता है। या जो कि समाज में फैली कुछ कुरीतियां हैं कि बहुत जल्दी जब भी कोई चीज़ को हम संभाल नहीं पाते तो उसके लिए हमें किसी पदार्थ का, खास तौर पे ऐसे पदार्थों का जो कि नशीले पदार्थ हैं उनका सहारा लेने की ज़रूरत होती है। चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी हो, तंबाकू हो, जो कि करीबन 1/3 हिस्से में लोगों में फैला हुआ है, या शराब है। और अनफॉर्चुनेटली उसका एक बहुत अजीब सा रूप देखने को मिला जबकि शराब की दुकानें खुली और लोगों ने अपनी जान की एक्चुअली परवाह ना किए बिना वहाँ पे लाइनों को लगाना शुरू कर दिया। तो हम किस तरह से, जब आप 6 हफ्ते के लिए वेट कर सकते हैं तो आप और लंबा भी वेट कर सकते हैं, या डिस्टेंसिंग रख के भी कर सकते हैं, या उसे एक सभ्य रूप से भी पेश आ सकते हैं। तो किस तरह से आने वाले समय में हम इन नशीले पदार्थों से बचेंगे, क्योंकि वो भी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को, हमारी रेजिलियंस को, इम्यूनिटी पावर को कम करते हैं। तो किस तरह से हम एक नए रूप से इनकी तरफ देखेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। किस तरह से हम अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएंगे। एक अच्छे शारीरिक व्यायाम करने वाले व्यक्ति की प्रतिरोध क्षमता बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति के मुकाबले अच्छी होती है जिसकी ना डाइट अच्छी है, ना जिसकी नींद अच्छी है, ना वो व्यायाम करता है। ये 3 ऐसे पहलू हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। सही समय पर सोना और पर्याप्त मात्रा में सोना, पर्याप्त भोजन करना, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, और सही प्रकार का पौष्टिक आहार करना और व्यायाम करना। अगर हम ये करते हैं तो हम अपनी शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाते हैं और उसके साथ प्रतिरोध क्षमता को भी। एंड कहा जाता है हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी एंड अ हेल्दी बॉडी इन अ हेल्दी माइंड। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो जरूर हम मानसिक रूप से भी अच्छा महसूस करेंगे। तो ये एक पहला स्टेप है जो कि हमारा एक्शनेबल पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम बड़ी आसानी से, कोई भी व्यक्ति, और इसमें किसी पैसे की जरूरत भी नहीं होती है, हम बहुत आसानी से इस चीज को अपने जीवन में अपना सकते हैं। उसी के साथ साथ जरूरत हो जाती है एक रूटीन को बनाए रखने की। हो सकता है आने वाले समय में हमें से कई लोग वर्क फ्रॉम होम करें, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम होम को वर्क प्लेस बना लें, वहां पर एक जगह सेट कर लें जिससे कि हम उसी जगह पे बैठ के जब हम काम करते हैं तो हमारी सोचने की शक्ति अलग हो जाती है, हमारा फोकस अलग हो जाता है, हम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, मन में उधर उधर के विचार नहीं आते, और एक रूटीन ऑलरेडी सेट हो जाता है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं चाहे घर के एक हिस्से में ही काम के लिए जा रहा हूं, तो आप नहाएंगे, धोएंगे, कपड़े बदलेंगे, तैयार होंगे, सही समय पर नाश्ता करेंगे और उस जगह पे बैठ जाएंगे, और वहां से ही सारे दिन की दिनचर्या, जैसे कि हम काम पे जाते हैं या अगर बदले रूप से काम है तब भी हम उसको अपना सकते हैं। और उस दिनचर्या में फिर एक और चीज को हम शामिल कर लें जो शायद हम जब काम पे भागा दौड़ी के बाद, ट्रैफिक के बाद पहुंचते हैं, कि अगर आपके पास अब समय है, एनर्जी बच रही है, समय बच रहा है, तो आप उस समय में अपने लिए थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना शुरू करें। जैसे बच्चों के लिए आमतौर पे एक पीरियड होता है जो करीबन 45 मिनट का होता है, उसके बाद 5 मिनट का, 10 मिनट का उनको ब्रेक मिलता है। तो उस तरह से अपने लिए भी एक ब्रेक ले लें
जिससे कि माइंड जो है वो तरोताज़ा होता है। और उस समय में कोई और एक्टिविटी करें, या सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाएं, कुछ समय अपने अंदर जाएं, रिलैक्स करें और फिर से काम को शुरू कर दें। तो इस तरह के अगर हम अपना टाइमिंग को सेट कर लेते हैं और उसी के साथ साथ जब हम अपने काम को ख़त्म कर देते हैं तो फिर उसके बारे में सोचना या उसी के बारे में परेशान होते रहना या उसी के बारे में बात करते रहना या अपने घर वालों पर ध्यान देना, ये सही नहीं है, जिसको कि वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं। मैं समझता हूँ कि वर्क भी लाइफ का एक हिस्सा ही है, तो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं सच्चाई है, लेकिन प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का बैलेंस वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और फिर अपने लिए, चाहे आपकी कोई हॉबीज़ हैं, चाहे आप कोई चीज़ सीखना चाहते थे और नहीं कर पाए, चाहे वो कुछ स्किल्स हैं जो आगे जाके आपको आपके काम में या नए रूप से काम करने में मदद करेंगे, तो उसको भी हम अपना सकते हैं। तो जब वो होना शुरू होता है तो रोज़ ही हमारा दिन जो है वो सशक्त भी होता है और हमें ऐसा लगता है कि हमने आज के दिन कुछ पाया, कुछ किया। और अपनों के लिए समय निकालना, वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि उनके साथ एक रिश्ते को बनाए भी रखें और अभी ही सही समय है उस रिश्ते को आगे ले जाने का और उसको बढ़ाने की कोशिश करें। उसको किस तरह से हमने उसमें नयापन लाना है, या कोई पुरानी जो चीज़ें हुई थी जिसमें कि हम किसी कारण से उस पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो कैसे उसको हमने अब सही करना है। अब मेरे ख्याल से तो अगर उसको हम एक प्लान ऑफ एक्शन बना के, एक्शनेबल पॉइंट्स जैसे कि लिख के एक अपने लिए प्रोजेक्ट बना लें, एक अपने परिवार के लिए प्रोजेक्ट बना लें, जिसमें कि हम किस तरह से ये चीज़ें कर पाएंगे, उसको अगर हम प्लान करके और रोज़ ही हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं कर पाए और कल उसे कैसे करेंगे, इसका आंकलन कर लें, तो वो ठीक होना अपने आप ही स्वतः शुरू भी हो जाता है और आसानी भी हो जाती है। उसी के साथ साथ एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट डायमेंशन है रिश्तों की, वो है सामाजिक रिश्ते। अपने पड़ोसी, जिनको कि कई बार लोग कहते हैं कि हम सेम बिल्डिंग में रहते थे, हमें पता ही नहीं था, क्योंकि कभी मिलने का समय ही नहीं मिला, फुर्सत ही नहीं मिली। अब वो चीज़ें बढ़ सकती हैं। अगर कोई पुराने मित्र थे जिनके साथ हम बहुत सालों से नहीं मिले, कुछ समय उनके लिए निकाल सकते हैं। अपने परिवार वालों के लिए, खासतौर पे वो लोग जो थोड़े से वृद्ध हैं, जिनको कि साथ की ज़रूरत है, उनके साथ अगर हम मिल सकेंगे तो बहुत ही अच्छा। अगर नहीं भी होता तो आज के समय में टेक्नोलॉजी है, टेलीफोन से लेके और इंटरनेट के द्वारा कई ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम उनसे जुड़ सकते हैं, उनका हाल पूछ सकते हैं, उनका सहारा बन सकते हैं। दूसरों का सहारा बनने से अपने अंदर एक क्षमता महसूस होती है जो हमें स्वतः ही अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है। तो अगर हम ये करना शुरू कर देते हैं तो हमारे सामाजिक रिश्ते तो ठीक होंगे ही, लेकिन जो हमारे आसपास वाले हैं अगर वो खुश रहते हैं और वो सिग्निफिकेंट अदर्स हैं जो हमारी ज़िंदगी में महत्व रखते हैं, तो हम उनको खुश देखकर स्वतः ही अपने आप को खुश महसूस करना शुरू करेंगे। तो जब ऐसा होता है तो हमारा पूरा दिन जो है वो एक तरह से सार्थक होता है। उसकी वजह से अगर कोई ऐसी परेशानियां आएंगी भी, और कितनी आएंगी, कब आएंगी, किस रूप में आएंगी, किसी को मालूम नहीं, लेकिन वो तभी मालूम होगा जब वो आएंगी। तो उसको उस दिन के लिए ही स्थगित कर दें। अपनी पूरी क्षमताएं और अपना पूरा ध्यान आज को सार्थक करने में, आज वो ताकत बटोरने में, और फिर आने वाले समय में उसको किस तरह से डील करना है उस समय जब वो किसी तरह की अगर समस्या आएगी। और ये भी पाया जाता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो तो उस समय में फिर आपको उसको संभाल पाने में, नए नए तरीके उसको ठीक करने में सहायक सिद्ध होते हैं। और अगर बहुत परेशान है तो जो ऐसे समय में अवसर आते हैं उन अवसरों को भी हम नहीं देख पाते। तो अपने को फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट ना करके प्रेजेंट में ही रहें।
क्योंकि प्रेजेंट एक तरह से गिफ्ट भी कहा जाता है, तो आज का समय जो है वो गिफ्ट है, लेकिन उसको मैंने कितना जिया ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये माइंडफुलनेस की हर क्षण का किस तरह से हम पूरा फायदा उठा सकें, अगर वो होता है तो हमारे मन के साथ साथ जो हमारे शरीर की गतिविधियां हैं, चाहे हमारी हार्ट रेट है, चाहे हमारा ब्लड प्रेशर है, चाहे हमारी पाचन क्रिया है, चाहे हमारी नींद है, या हमारे मसल्स की शक्ति है, या हमारे हार्मोन्स हैं, वो सब सकारात्मक होने शुरू हो जाते हैं। और उस सकारात्मक कारणों से अगर किसी तरह की छोटी मोटी इन्फेक्शन हुई भी है तो भी हम उससे अच्छी तरह से जूझ पाते हैं, डील कर पाते हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ खास ऐसे प्रिंसिपल्स की और खास ऐसी दिनचर्या की जिसके द्वारा हम अपनी इमोशनल रेजिलियंस को बढ़ा सकते हैं। एक और बात कहना चाहूँगा, कई बार ऐसा सोचा जाता है कि कुछ लोग हैं जो बहुत ही टफ होते हैं, किसी भी स्थिति से गुजर जाते हैं, और कुछ हैं जो कि छोटी मोटी स्थिति को भी नहीं संभाल पाते। लेकिन एक और चीज देखने में आती है कि कुछ लोग एक स्थिति को नहीं संभाल पाते, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हुई है नहीं संभाल पाते, लेकिन घर की हर परेशानी को बखूबी निभा लेते हैं। और दूसरे होते हैं जो कि घर की किसी भी तकलीफ को नहीं सह पाते, ऑफिस की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको बखूबी निभा लेते हैं। तो सोशल स्किल्स के रूप में ही हम किस तरह से आपदाओं को, छोटी बड़ी पर्सनल या बड़ी आपदाओं को जूझना है, इसको सीखा भी जा सकता है। इट्स अ लर्नेबल स्किल। और हम किस प्रकार से कुछ तरीकों से उन स्किल्स को सीख सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहली चीज है जिसको कहते हैं कंट्रोल। मतलब अगर हम ये समझें कि क्या क्या चीज़ों को मैं यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर आप हर चीज़ को पूरा नहीं कंट्रोल कर सकते तो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल जिन चीज़ों के ऊपर है उसको सार्थक करना शुरू करें। दूसरी चीज़ उसमें होती है चैलेंज। किस प्रकार से जिस चीज़ से हम अगर डरते हैं तो थोड़ा सा अगर हम छोटे छोटे रूप में उसको एक चैलेंज समझ के उसको संभालना शुरू कर देते हैं तो हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ता है, हमारा आत्म कॉन्फिडेंस जो है वो भी बढ़ता है, और उसी कारण से हमारी मोटिवेशन भी बढ़ती है। और तीसरी चीज है कमिटमेंट। यानी जब भी कोई तकलीफ आए, जब भी कोई परिस्थिति आए, और हर परिस्थिति तकलीफ नहीं होती, जब तक हम उससे डरते हैं वो तकलीफ लगती है, लेकिन हम सामना करना शुरू कर देते हैं तो वो एक चैलेंज बन जाती है, और चैलेंज बन जाती है तो हम उसके पार भी जा सकते हैं। तो कमिटमेंट हो कि हम इस परिस्थिति को अपनी पूरी क्षमता के साथ ठीक तरह से डील करेंगे और उसके पार उतरेंगे। जैसे कि रोड में स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, बम्पर्स होते हैं, तो हम अपनी गाड़ी को उस समय में थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब हम उसको पार कर लेते हैं तो फिर हम फुल स्पीड पे जा सकते हैं। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हम रोड पे जा रहे हैं और वहां पे एक मोड़ सा आया है, सो वो एक बेंड है, एंड नहीं है। वी हैव टू रियलाइज कि जिंदगी में कई ऐसी चीजें आती हैं जिसकी वजह से एक नई दिशा मिलती है, और कई बार वो दिशा बहुत सकारात्मक होती है। वो हमारे को नए अवसर, नए लोगों से मिलने का मौका और नई चीजों को आत्मसात करने का मौका, कुछ नई स्किल्स को सीखने का मौका देती हैं। तो कंट्रोल, चैलेंज और कमिटमेंट, इसी के साथ साथ एक और सी है कम्युनिकेशन। लोगों के साथ और अपने साथ सही संवाद रखना, अपने आप को सकारात्मक विचार देना, अपने आप को भावनात्मक रूप से सशक्त रखना, और दूसरों के साथ पूरी इज्जत के साथ बातचीत करना, अपनी भाषा को स्पष्ट रूप से जो मन में है वही हम बोल सकें और वही कर सकें, उसको करना। तो जब वो हमारी एक कम्युनिकेशन क्लियर होती है तो उसकी वजह से ना दूसरे व्यक्ति को कष्ट होता है, ना हमें खुद कष्ट होता है,
और उसी के साथ एक और सी है जिसको कंपैशन बोलते हैं। थोड़ा सा दूसरों के प्रति संवेदना, किस प्रकार से दूसरा किसी कष्ट से गुजर रहा है और अगर हमारी थोड़ी सी मदद उस समय में मिल जाती है उसको, तो वो बहुत आगे तक जा सकता है। तो आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत शायद कंपैशन की है, क्योंकि अगर हम ये देखें कि बहुत से लोग हैं जिनके पास शायद खाने को नहीं है या घर नहीं है, किसी भी रूप से अगर हम उस व्यक्ति की थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, कंपैशन दिखा सकते हैं, तो वो हमें अपने अंदर एक ये भाव कि हाँ मुझ में भी शक्ति है दूसरे की मदद करने की, वो बहुत हद तक आपकी भी मदद करेगा, सिर्फ उस व्यक्ति की ही नहीं। और जब हम इन 5 C's के साथ चलते हैं तो फिर एक S की लड़ी है, मैं कहूँगा, जो शुरू हो जाती है, जिसमें है सेल्फ एस्टीम, अपने आप को देख पाने की जो हमारी शक्ति है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। सेल्फ टॉक, अपने साथ सकारात्मक रूप से संवाद करने की शक्ति, और उसके लिए बीच बीच में साइलेंस, थोड़े समय के लिए बाहर की जिंदगी से कट के अपने अंदर जाने की, अपने अंदर हो रहे विचारों को देखने की ताकत और उनको सही दिशा देने की ताकत। और जब ये 3 S's होते हैं तो साथ ही साथ सर्विस, किस प्रकार से हम दूसरे लोगों को सही रूप से सेवा कर सके, उनकी मदद कर सके, और जिस प्रोफेशन में है उसको पूरी तरह से हम कमिटमेंट के साथ दूसरों को दे सके। जब ये होना शुरू होता है तो फिर एक साइकिल है, पॉजिटिविटी का साइकिल, और वो जो पॉजिटिविटी का साइकिल है वो मुझे भी अपने लिए पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग्स देता है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि थॉट से पहले की भी एक स्टेज, जिसको कि हम इंटेंशन कहते हैं, वृत्ति, जब हमारी इंटेंशन सही है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव विचार आएंगे, फिर पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी, फिर पॉजिटिव स्पीच होगी, फिर पॉजिटिव एक्शंस होंगे, फिर वो पॉजिटिव मेमोरीज बनेंगी, और फिर वो पॉजिटिव संस्कार या पर्सनालिटी के डेवलपमेंट होगी। ये एक प्रोसेस है, लेकिन जिस दिन से भी हम शुरू करते हैं तो और उसके साथ पूरी तरह से कमिटमेंट करते हैं तो हम अच्छे रूप से इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। और थोड़े ही समय बाद लोग आपसे पूछेंगे कि आप में इतना बदलाव कैसे आ गया। एक बहुत आखिरी रूप में मैं प्रैक्टिकल तरीके से कैसे हम कर सकते हैं, रोज़ सुबह जब हम उठें तो ये सोचें कि आज का दिन मैं कैसे बिताना चाहता हूँ। What will be my mood today? मैं किस प्रकार से अपनी भावनाओं को रखूंगा, क्या छोटी छोटी परिस्थितियों से परेशान हो जाऊंगा या आज मेरा मूड सारा दिन पॉजिटिव रहेगा। बीच बीच में जब भी मौका मिले, कुछ क्षण के लिए हो सके तो 1 मिनट 2 मिनट हर चीज से ब्रेक लें, जिसमें कि थोड़ा सा अपने विचारों की गति को और विचारों की दिशा को देखें, और अगर उसको थोड़ा सा सेट करने की ज़रूरत है तो उसको रीसेट बटन में लगा के कर लें, ताकि आने वाला समय थोड़ा सा कुछ मिनट घंटे आपके सकारात्मक रूप से गुजरें। बीच बीच में अगर हो सके तो जिसको कि कर्म योग बोलते हैं, उस कर्म योग में हम अपनी जो हाईएस्ट स्टेज है, और हमारी हाईएस्ट स्टेज अगर हम देखें तो रोज़मर्रा के जीवन से कहीं ऊंची है, वो स्टेज जबकि हमने कोई ज़िंदगी में उपलब्धि की थी, या वो स्टेज जबकि कुछ लोग मेडिटेशन में बैठे होते हैं उस समय जो उसको पाते हैं, या कभी आपके साथ कोई बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा हो, या कई बार कुछ लोग कहते हैं कि जब वो नेचर में थे उस समय का रहा हो। तो अगर आप वैसा करते हैं, उन क्षणों को याद करते हैं और उस पॉजिटिव इमोशंस को मनाने की कोशिश करते हैं, तो आपके साथ अंदर तो सकारात्मक हो ही, लेकिन आप ही के साथ साथ जो आसपास वाले लोग हैं उनमें भी वो सकारात्मकता बहुत आसानी से फैल सकती है। और अगर हो सके दिन में 2 बार 15 से 30 मिनट अपने लिए पूरा समय निकालें, उस समय में प्राणायाम
या मेडिटेशन करें। अगर नहीं जानते हैं तो सीख लें, क्योंकि शोध आज के समय में बता रही है कि मेडिटेशन करने से कई तरह की स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी कम होते हैं और साथ ही साथ हमारी तकलीफ़ों को संभाल पाने की शक्ति बढ़ती है, रेजिलियंस बढ़ती है, रोगों से लड़ने की हमारी ताकत बढ़ती है। और उसी के साथ साथ हर दिन 2 चीज़ें, अगर हम दूसरों की मदद करने में कोई भी तरीका हो, किसी को अपनी बातों से हमने अगर किसी तरह से मदद करनी है, उसका उत्साह बढ़ाना है, या किसी और शारीरिक रूप से हम मदद कर सकते हैं, धन से मदद कर सकते हैं, जो भी आपके सामने ऐसी बात आए उसके द्वारा आप कर सकते हैं, जिसको ऑल्ट्रुइज्म बोलते हैं। और कंपैशन के साथ साथ एक और फीलिंग कि मैं दूसरों से बहुत अधिक भाग्यशाली हूँ। बहुत सारी चीज़ें, चाहे हम अपने अंदर जितनी भी कमियां महसूस करें, लेकिन हम बहुत लोगों से बहुत भाग्यशाली हैं। अगर हमारे पास रहने को जगह है, कपड़े हैं, खाने को है, सोचने की शक्ति है, कोई जॉब है तो बहुत ही बढ़िया, परिवार वाले हैं, शरीर के अंग पूरे हैं, मन पूरी तरह से सशक्त है, तो हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। तो वो अगर हम एक तरह से शुक्राना बोलते हैं या ग्रैटिट्यूड उसको अपना सकते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से हमारी मदद करता है। और जब हम इन चीज़ों को अपने जीवन का रोज़ का एक हिस्सा बना लेते हैं, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, सोशल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर, तब हम वो WHO की डेफिनेशन that health is not merely the absence of disease but a positive sense of well-being in the physical, mental, emotional, social and spiritual dimensions, उसको आत्मसात करते हैं। और जहाँ तक रही बात आपदा की, जहाँ तक रही बात कोरोना की, this too shall pass because tough times do not last but tough people do। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Respected Dr. Avdesh Sharma ji had just given us a compendious and articulate speech. On behalf of our college and all the participants, I express my sincere gratitude to respected Dr. Avdesh Sharma ji. Thank you very much, sir. Now, I hand over to respected Dr. Arvind Durgu sir for the next session. Good morning, friends. Now, the resource person for second lecture is Dr. Shobna Abbenkar. Dr. Shobna Abbenkar is retired vice principal and head of UG and PG Department of Psychology, Ferguson College, Pune. She has 37 years of teaching experience at UG and PG levels. She received National Merit Scholarship in 1976 to 1978. Her areas of interest are health and well-being, psychometry, positive psychology, industrial and organizational psychology. Her specialties are research methodology, application of SPSS, test development and validation, and career counseling. She has guided 4 students for PhD dissertation and completed 3 research projects. She has presented research papers at national and international level seminars and conferences. She has also worked as reviewer for research journals. She has 40 research publications in international and national journals. She has 14 co-authored books on her credit, while
2 co-authored chapters in books. She has worked on Board of Studies of Pune University and many other colleges. She has chaired sessions and delivered planetary lectures at various national and international conferences, as well as resource person for workshop on various topics. She has worked as member on various committees at university level. She is founder member of Deccan Education Society's autonomous PG certificate course in counseling psychology. She started Manas, that is Center for Psychological Testing and Counseling at Ferguson College. She is founder coordinator of MA Psychology and Research Center for PhD in Psychology at Ferguson College. She has vast experience of aptitude testing and career counseling. She is life member of Human Education Society, Indian Association of Human Behavior, Indian Academy of Applied Psychology, Indian Association of Mental Health, Alzheimer and Related Diseases Society of India, Indian Association of Advancing Research in Obesity, and Marathi Manas Shastra Parishad. She is the recipient of various awards like Zenith Trust of India's Most Popular Teacher Award in 2006, Fellowship Friendship, India International Friendship Society's Rashtriya Gaurav Award in 2011, Dr. Manju Thakur Memorial Award of Indian Academy of Applied Psychology for distinguished innovative work. At present, she is member of Board of Studies of MIT World Peace University and Vishwakarma University. She is advisor to the Board of EduWalker National Complaint Committee and member of Internal Complaint Committee, ICC Flame University. So dear friend, her topic for today's session is facing the challenges of COVID-19 pandemic, staying positive. So I would like to request respected Dr. Shobna Abhyankar Madam to deliver her speech. नमस्कार, मी डॉक्टर शोभना अभ्यंकर. सर्वप्रथम मी YCSP मंडळाच्या दादासाहेब दिगंबर शंकर पाटील महाविद्यालयाचे आभार मानते की त्यांनी मला या वेबिनारमध्ये माझे विचार मांडण्याची संधी दिली. त्याचबरोबर मी महाविद्यालयाचे आणि संयोजकांचे अभिनंदनही करते की त्यांनी करोना व्हायरस सारखा विषय या वेबिनारसाठी निवडला. वेबिनार हे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे सर्वोत्कृष्ट माध्यम आहे हे आपण सर्व जाणतात. या खास गोष्टीसाठी मी महाविद्यालयाचे विशेष आभार मानते. सध्या करोना हा विषय सगळीकडे अत्यंत जिव्हाळ्याचा गाजलेला विषय आहे. लोकांना त्रस्त करणारा, लोकांच्या मनात धास्ती निर्माण करणारा असा हा विषय आहे. जिकडे तिकडे करोनाबद्दलची चर्चा, मित्रमैत्रिणी भेटला की करोना हाच विषय, प्रसार माध्यमे, समाज माध्यमे या सर्वांवर रोज कितीतरी करोनाबद्दलचे मेसेजेस, बातम्या आपण ऐकत आहात, आपण पाहत आहात. या करोनाबद्दल जनमानसामध्ये एक प्रकारची धास्ती निर्माण झाल्याचं, भय निर्माण झाल्याचं आपल्याला बघायला मिळतं. याचं कारण काय? खरोखर तो इतका भयानक आहे का? आणि मग भयानक असेल तर आपल्याला काय काळजी घ्यायला हवी? आणि भयानक नसेल तर तो आपल्याला भयानक का वाटतो? कुठल्याही एका गोष्टीचा आपल्याला कसं संवेदन होतं, आपण त्या गोष्टीकडे कसं पाहतो, त्या गोष्टीचा अर्थ कसा लावतो, त्यानुसार आपल्या भावना या ठरत असतात. आपल्याला वेगवेगळ्या भावना ज्या अनुभवायला येतात, सकारात्मक, नकारात्मक, या बहुतांशी आपल्या संवेदनावर अवलंबून असतात. त्यामुळे एकदा हे आपण संवेदन आपल्याला कसं होतं हे जर पाहिलं तर आपल्या भावनांचं स्पष्टीकरण आपल्याला नक्की मिळेल. प्रसार माध्यमातून आपण पाहतो, रोजच्या बातम्यांमधून पाहतो, जिथं अत्यंत वेगानं पार्श्वसंगीताच्या बरोबर धडाधडा धडाधडा बातम्या आपल्या कानावर येत असतात आणि त्या वेगाचा, त्या म्युझिकचा आपल्या मनावर
नक्कीच खोलवर परिणाम होत असतो. आणि त्याचबरोबर त्या बातम्या अशा की त्या करोनाबद्दलच्या बातम्या, त्यामुळे त्याचा एक वेगळ्या प्रकारचा प्रभाव आपल्या मनावर पडतो. त्यात प्रसारमाध्यमांमध्ये करोनासाठी वापरलेली वैशिष्ट्ये, करोनाचे थैमान, हाहाकार, धुमाकूळ, हैदोस यांसारखी अनेक विशेषणे या करोनाला लावली जातात आणि त्याचा एक वेगळाच प्रभाव आपल्या मनावर पडत असतो. ही सगळी विशेषणं ऐकली की माझ्या डोळ्यासमोर एक चित्र उभं राहतं की टीव्हीवरची मालिका जी आहे सध्या चालू आहे शक्तिमान, त्याच्यामध्ये शक्तिमान कसा एका क्षणार्धात एका जागेवरून दुसऱ्या जागेकडे जातो, पोचतो, तसाच जणू काही हा करोना म्हणजे एक शत्रूचं सैन्य आहे, सैनिक आहे आणि तो एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात शक्तिमान सारखाच किंवा त्याच्यापेक्षा अधिक वेगानं जातोय, पोचतोय, थैमान घालतोय आणि आपला व्हायरस तिथं सोडतोय. असं एक चित्र डोळ्यासमोर उभं राहतं. इतका काही भयानक व्हायरस नाहीये खरं तर. करोना म्हणजे एक साधा फ्लू सारखाच आजार आहे, जो संसर्गजन्य आहे. अर्थात जेव्हा संसर्गजन्य आपण म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ असा की योग्य ती काळजी घेतली तर आपल्याला त्याचा संसर्ग होण्याचे चान्सेस कमी होतील. मग तरी सुद्धा या करोना व्हायरसचा निगेटिव्ह परिणाम लोकांच्या मनावर का झालेला दिसतोय आपल्याला. आपण पाहतो की करोनाबद्दल जी काही चर्चा केली जाते, जी काही बातम्या वाचल्या जातात, जे काही सोशल माध्यम, सामाजिक माध्यमावरील मेसेजेस, पोस्ट वाचल्या जातात, त्यामुळे अनेक परिणाम संभवतात आणि सामाजिक परिणामही संभवतात. मानसिक, शारीरिक आणि सामाजिक आरोग्य ह्याच्यावर काही विपरीत परिणाम संभवतात. मानसिक परिणामांमध्ये आपल्याला उल्लेख करता येईल विशेष करून तो कंटाळा, चिडचिड, मानसिक ताण, असुरक्षितता, सध्या परिस्थिती आपल्या नियंत्रणाखाली नाही आहे यामुळे वाटणारी एक असहाय्यता, हतबलता, अनिश्चितता, आयुष्यात काही पर्पज आपण हरवून बसलोय का काय ही वाटणारी एक पोकळी असलेली भावना. त्याचबरोबर अगदी एक्स्ट्रीम केसमध्ये आत्महत्येचे विचार, किंबहुना रिसेंटली आत्महत्येच्या काही तुरळक केसेस झाल्याचंही आपण ऐकलेलं आहे आणि ती अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे. शारीरिक परिणामांमध्ये आपल्याला उल्लेख करता येईल तो डोकेदुखी, मायग्रेन, क्षुधा अभाव ज्याला आपण भुकेचा अभाव म्हणतो किंवा अतिक्षुधा, निद्रानाश, झोपेमधील व्यत्यय, रक्तदाबातील वृद्धी, रक्तशर्करा ह्याच्यामध्ये वृद्धी. सामाजिक पातळीवर जर आपण परिणाम पाहिले तर त्याच्यामध्ये सुद्धा काही आपल्याला गोष्टींचा उल्लेख करता येईल, जसं की एकटं वाटणं आणि त्या एकटेपणामुळे आणि लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमध्ये फारसं कोणामध्ये मिक्सअप होता येत नाही या भावनेतून सोशल मीडियावर जास्त राहणं, त्यावर जास्त वेळ खर्च करणं, इंटरनेट ॲडिक्शन, भांडणं, विध्वंसकता, दंगली इत्यादी परिणाम संभवतात. अर्थात हे परिणाम हे वॉटरटाईट कंपार्टमेंट्स प्रमाणे नाही आहेत, म्हणजे सायकोलॉजिकल, फिजिकल अँड सोशल हेल्थ दे आर नॉट वॉटरटाईट कंपार्टमेंट्स बट दे आर इंटरलिंक्ड. जे मानसिक पातळीवर घडतं ते शारीरिक पातळीवर घडतं किंवा जे शारीरिक पातळीवर घडतं ते मानसिक, आणि हीच गोष्ट सामाजिक आरोग्याला पण लागू होते. या सगळ्या नकारात्मक भावनांचा परिणाम तुमच्या जीवनशैलीवर होतो. एक सेडेंटरी लाईफस्टाईल, ज्याला निकामी जीवनशैली आपण म्हणतो, की केव्हाही उठावं, केव्हाही झोपावं, केव्हाही जेवावं, ज्याला काही पर्पज नाही आहे, काही दिशा नाही आहे, असं दिशाहीन आयुष्य जगण्याकडे व्यक्तीची प्रवृत्ती जाऊ शकते. एवढंच नव्हे तर रोगप्रतिकारक शक्तीवर सुद्धा त्याचा विपरीत परिणाम होतो. अर्थात त्या विषयाला मी हात घालणार नाही आहे, कारण नंतरचं एक सत्र या विषयावरच खास ठेवण्यात आले आहे. ही नकारात्मकता जर कोविड-19 बद्दलच्या माहितीच्या अभावामुळे असेल किंवा अपूर्ण माहितीमुळे असेल किंवा चुकीच्या माहितीमुळे असेल तर कोविड-19चं सत्य समजून घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. सर्वप्रथम आपण बघूयात की संपूर्ण जगामध्ये जे वेगवेगळे देश आहेत त्या देशांमध्ये सध्याची करोनाची स्थिती काय आहे. प्रत्येक 10 लाख लोकसंख्येमागे किती कोरोनाचे केसेस आढळून येत आहेत, कन्फर्म केसेस आढळून येत आहेत
हे आपल्याला या मॅपवरनं पाहता येईल. हा इकडं आपला भारत आहे. भारतात जर आपण पाहिलं तर प्रत्येक 10 लाख मागे 2.55 केसेस, करोनाच्या कन्फर्म केसेस आढळून आलेल्या आहेत. मे 13चा हा अपडेटेड डेटा आहे. रशियामध्ये जर पाहिलं तर 74.68 केसेस आहेत. कॅनडामध्ये पाहिलं तर 31.16 केसेस आहेत. युनायटेड स्टेट्स 66.61, ब्राझीलमध्ये 43.55, अर्जेंटिना 11.71. असे वेगवेगळे, आणि हे छोटे देश इथं आहेत, त्यांचं पर्सेंटेज वेगवेगळं आहे. हे सगळे ऑथेंटिक आकडे आहेत आणि पूर्ण रिसर्च करून त्याच्यातनं हा डेटा त्यांनी एक्स्ट्रॅक्ट केलेला आहे. या आलेखामध्ये प्रतिदिनी प्रत्येक देशामध्ये करोनाच्या किती केसेस, कन्फर्म केसेस ॲड होत आहेत हे आपल्याला बघायला मिळतं. ह्याच्यामध्ये हे पुन्हा एकदा वेगवेगळ्या रंगाने वेगवेगळे देश दाखवलेले आहेत. हा इकडं भारत आहे की ज्याच्यामध्ये हा 13 मेचा डेटा आहे. 3525 केसेस 13 मेला नवीन केसेस आलेले आहेत. इथं रशियामध्ये जर पाहिलं तर 10,899 केसेस ॲड झालेले आहेत. इथे युनायटेड स्टेट्स जर पाहिलं तर 22,048 केसेस ॲड झाले आहेत. 1,176 केसेस पाहूयात. हा आलेख जो आहे तो ऑस्ट्रेलियाच्या बाबतीतला आहे. आणि हा आलेख काय दर्शवतो तर डेली कन्फर्म कोविड-19 केसेस अँड डेथ्स. हा जो वरचा ग्राफ आहे हा डेली कन्फर्म केसेसचा आहे आणि हा जो खाली दिसतोय छोटासा तो डेली डेथ्स ड्यू टू कोविड-19. ह्याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर ऑस्ट्रेलियात बरीच सुधारणा दिसते आहे की इकडं हा वर पीकला गेलेला आहे आणि तिथनं तो खाली आलेला आहे आणि आता बऱ्यापैकी तो खालच्या लेवलला पोहोचलेला आहे. आता आपल्याला इतर देशांचं जर बघायचं झालं तर तेही आपल्याला या आलेखावरनं बघता येईल. आपण इंडियाचं बघूयात की इंडियाची स्थिती काय आहे. इंडियामध्ये सुद्धा जर आपण पाहिलं तर इथं दिसतंय की ह्या टोटल कन्फर्म केसेस आहेत आणि ही टाइम सिरीज आहे, म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक तारखेचं रेकॉर्ड इथं मिळू शकतं. हे एप्रिल 29चं आहे, हे 5 मेचं आहे, हे 7 मेचं आहे, हे 12 मेचं आहे आणि हे 13 मेचं आहे. मी सुरुवातीला म्हटलं की काही ऑफिशियल वेबसाईट्स आहेत त्याच्यावर आपल्याला ऑथेंटिक माहिती मिळू शकते, अधिकृत माहिती मिळू शकते की जी खरोखर संशोधनाच्या आधारे काढण्यात आलेली आहे, गोळा करण्यात आलेली आहे. ही जी साईट आहे ती ourworldindata.org अशी ही साईट आहे आणि याच्यामध्ये हे वेगवेगळे ऑप्शन्स तुम्हाला बघायला मिळतील. याच्यामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर टेस्ट कंडक्टेड वर्सेस कन्फर्म केसेस किंवा स्कूल क्लोजर्स ड्युरिंग कोविड-19 पॅन्डेमिक, रिस्ट्रिक्शन्स कुठल्या कुठल्या देशांनी पाळलेले आहेत, त्यानंतर टोटल अँड डेली कन्फर्म कोविड-19 केसेस पर मिलियन पीपल, टोटल कन्फर्म कोविड-19 केसेस, ह्याचे वेगवेगळे ऑप्शन्स आहेत. आपल्याला जी माहिती हवी असेल त्या लिंकवर आपण क्लिक केलं की आपल्याला ती माहिती मिळू शकते. इथे जर आपण पाहिलं तर कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग, कॉम्प्रिहेन्सिव्ह कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग जर आपण पाहिलं तर ते कुठल्या कुठल्या देशांचं आहे. हा निळा रंग ज्या देशांना दिलेला आहे त्या सर्व देशांची कॉम्प्रिहेन्सिव्ह कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगची पॉलिसी आहे आणि जिथं हे ट्रेसिंग केलं जात नाही ते हे देश आहेत. त्याच्यामध्ये मुख्यत्वे ब्राझील आणि हे छोटे देश येतात. जिथे हिरवा रंग दिलेला आहे ते सर्व. तर या सर्व डेटावरनं अगदी स्पष्ट होत आहे की आपल्या देशाची स्थिती, ज्यांना आपण प्रगत देश म्हणतो त्या प्रगत देशांच्या तुलनेमध्ये खूप खूप चांगली आहे आणि याचे एकमेव कारण की वेळच्या वेळी घेतलेल्या खबरदारी आणि सरकारचं त्या दिशेनं टाकलेली पावलं आणि घेतलेली धोरणामध्ये वेळोवेळी गरजेनुसार केलेले बदल. ही अधिकृत माहिती जर आपण पाहिली तर नक्की मला असं वाटतं की आपल्या मनातील करोनाबद्दलची जी आशंका आहे, भीती आहे, चिंता आहे, हे सर्व निघून जाईल आणि ही माहिती नक्कीच आपल्याला दिलासा देणारी आहे, उभारी देणारी आहे आणि पुढे वाटचाल करण्याच्या दृष्टीनं, लॉकडाऊन सस्टेन करण्याच्या दृष्टीनं नक्की आपल्याला हे उपयुक्त ठरू शकते.
आतापर्यंत आपण जागतिक पातळीवरचे आकडे पाहिले. आता आपण भारताच्या अंतर्गत परिस्थिती काय आहे याचाही एक थोडक्यात आढावा घेऊयात. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअरची एक 8 मेला प्रेस कॉन्फरन्स झाली. त्यातून पुढे आलेले हे ऑफिशियल आकडे आहेत की ज्याच्यामध्ये त्यांनी किती रुग्ण हे ॲक्टिव्ह मेडिकल सुपरविजन खाली आहेत, किती ऑक्सिजन सपोर्टवर आहेत, किती ICU आणि रिलेटेड सपोर्टवर आहेत, किती व्हेंटिलेटर सपोर्टवर आहेत, किती केसेस 24 तासात गेल्या 24 तासात म्हणजे 7 तारीख ते 8 तारीख 8 मे या काळात वाढलेले आहेत आणि त्यातील आणि एकंदर किती क्युअर पण झालेले आहेत. त्याचबरोबर रिकव्हरी रेट किती आहे. आपण जर हा रिकव्हरी रेट पाहिला तर इथं स्पष्ट दिसत आहे की 29.36% हा रिकव्हरी रेट भारतातील आहे. त्याच प्रेस कॉन्फरन्समध्ये रिलीज केलेली अजून ही एक अधिकृत आकडेवारी आपण बघूया. या आकडेवारीवरून आपल्याला काय दिसतं तर असे कित्येक जिल्हे आहेत की जिथं गेल्या 48 तासात किंवा 31 दिवसामध्ये 14 दिवसामध्ये 7 दिवसामध्ये एकही कोविड-19ची केस रिपोर्टेड झालेली नाही. इंडियन रेल्वेजनं जवळजवळ 5231 कोचेस हे कोविड-19 केअर सेंटर्समध्ये कन्वर्ट केलेले आहेत. कित्येक स्टेशन्सला रेल्वेजनं हेल्थ केअर स्टाफ उपलब्ध करून दिलेला आहे. काही स्टेशन्समध्ये मेडिसिन्स पण उपलब्ध करून दिलेले आहेत. जवळजवळ 2,500 डॉक्टर्स आणि 35,000 पॅरामेडिकल प्रोफेशनल्स हे रेल्वेजनं कोविड-19 मॅनेजमेंटसाठी उपलब्ध केलेले आहेत. ही अधिकृत आकडेवारी आहे आणि ही माहिती कधीही प्रसारमाध्यमातून पुढे येत नाही. याआधी मी ज्या काही नकारात्मक भावनांचा उल्लेख केला होता त्या नकारात्मक भावनांसह जगणं नक्कीच आनंददायी अनुभव नाही आहे. या भावना क्लेशकारक असतात आणि त्या आपल्या शरीरावर विपरीत परिणामही करत असतात. मन आणि शरीर यांचा अगदी जवळचा संबंध आहे. जे शारीरिक पातळीवर घडतं ते मानसिक पातळीवर घडतं आणि जे मानसिक पातळीवर घडतं त्याचे रिपरकेशन्स आपल्याला शारीरिक स्वरूपात बघायला मिळतात. त्यामुळे या नकारात्मक भावनांवर मात करणं अत्यंत गरजेचं आहे. आता हे कसं काय करता येईल आणि साध्या साध्या गोष्टी आहेत. सर्वप्रथम आपण हे जाणून घेऊयात की मानवी मेंदूकडे एक वैशिष्ट्यपूर्ण अशी क्षमता असते आणि ती म्हणजे जेव्हा आपण एखाद्या गोष्टीचा विचार करतो, सतत विचार करतो, दुसऱ्या कुठल्या गोष्टीचा विचार आपल्या मनात येत नाही, तेव्हा एक प्रकारचं सर्किट आपल्या मेंदूमध्ये त्याचं तयार होतं आणि ते सर्किट पुन्हा ऍक्टिव्हेट होत राहतं. आपण त्यातून बाहेर येत नाही. मग आता हे सर्किट जर तोडायचं असेल तर आपण आपल्याला अशी एक डोळ्यासमोर कल्पना करूयात की जुनं सर्किट जर नकोसं असेल किंवा जुनं वायरिंग नकोसं असेल तर आपण काय करतो, नवीन वायरिंग करतो. तसंच मेंदूमध्ये सुद्धा तशाच प्रकारची एक मेकॅनिझम कार्यरत असते, ती म्हणजे या सर्किटच्या स्वरूपात. ते सर्किट जर योग्य असेल, चांगलं असेल, आनंद देणारं असेल तर काहीच हरकत नाही. पण त्या सर्किटमुळे जर आपल्याला त्रास होणार असेल, क्लेश होणार असतील तर ते सर्किट बदलणं अत्यंत गरजेचं असतं. आणि मेंदूमध्ये ती क्षमता असते रिवायर. हे सर्किट पुन्हा वेगळ्या प्रकारे पहिलं सर्किट मोडून नवीन सर्किट तयार करण्याची क्षमता त्याला असते, ज्याला न्यूरल प्लॅस्टिसिटी असं आपण म्हणूयात, ज्याला चेतीय लवचिकता असं आपल्याला साध्या शब्दात म्हणता येईल. मग आता हे करण्यासाठी ऑब्व्हियसली त्याचा एक मार्ग असा आहे की या भावनांपासनं, या विचारांपासनं मन डायव्हर्ट करणं, वेगळ्या कुठल्या तरी गोष्टींमध्ये मन गुंतवणं. आणि हे जर आपण केलं तर नक्कीच आपल्यामध्ये सकारात्मकता वाढेल, सकारात्मकता येईल आणि वाढेल. तर यासाठी काय काय करता येईल आपल्याला. तर सर्वप्रथम मी म्हटलं तसं की कोरोना व्हायरस बद्दलचे फॅक्ट्स ज्या काही आहेत, वास्तव चित्र आहे, ते आधी जाणून घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी मी यापूर्वी तुम्हाला सर्व अधिकृत माहिती देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. दुसरं असं की एक पेशन्स ठेवण्याची नितांत गरज आहे. कोरोना व्हायरस किती दिवस राहणार आहे
त्याचे नंतरचे रिपरकेशन्स काय असणार आहेत आपल्या व्यक्तिगत जीवनावर, आपल्या देशावर, आपल्या आर्थिक व्यवस्थेवर आणि इतर सर्व व्यवस्थांवर त्याचे काय परिणाम असणार आहेत आपल्याला माहिती आहे. एक मात्र नक्की की त्याचे दूरगामी परिणाम नक्की असणार आहेत आणि ते दीर्घकाळ टिकणार हेही आपल्याला माहिती आहे. त्यामुळे पेशन्स ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे. घरातील वयोवृद्ध व्यक्तींची काळजी घेणं तितकंच गरजेचं आहे. विशेषतः अशा वयोवृद्ध व्यक्ती की ज्यांच्यामध्ये कोमॉर्बिडिटीज आहेत, ऑलरेडी त्यांच्यामध्ये काही आजार आहेत, अशा व्यक्तींना कोरोनापासून त्यांचं संरक्षण करणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करणं, त्यांची काळजी घेणं हे आपण करू शकतो. कोरोनाचे दूरगामी परिणाम कसे असणार आहे ते माहिती नसल्यामुळे भविष्यासाठी आपल्याला आर्थिक तरतूद ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्यामुळे जो काही आपण पैसा जवळ ठेवलेला आहे, साठवलेला आहे, तो काटकसरीनं वापरणं, अनावश्यक गोष्टींवर खर्च न करणं हा एक मार्ग असू शकतो आणि असं करून आपलं भवितव्य आपण सुरक्षित करू शकतो. आणि त्या सुरक्षिततेच्या भावनेतून आपल्यामध्ये पॉझिटिव्ह भावना आता निर्माण होऊ शकतात, आपल्याला सुरक्षित वाटू शकतं. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जे सामाजिक माध्यमे आहेत, समाज माध्यमे, प्रसार माध्यमे यांच्यापासून जास्तीत जास्त दूर राहणं, त्यांच्या कमीत कमी संपर्कात राहणं. काही वाहिन्या अशा आहेत की जिथं खरोखर अधिकृत माहिती दिली जाते, अत्यंत वस्तुनिष्ठपणे दिली जाते. मला कुठल्या वाहिनीची जाहिरात करायची नाही आहे, आपण सर्व सुज्ञ आहात, आपण जाणता. पण अशा वाहिन्यांवरील बातम्या बघणं हा एक मार्ग त्यातनं असू शकतो. किंवा जसं मी मगाशी म्हटलं तसं काही अधिकृत वेबसाईट्स आहेत, त्या वेबसाईट्सवर जाऊन आपल्याला ती माहिती काढता येते. पण जेवढी आवश्यक माहिती तेवढीच घ्यावी आणि जी अनावश्यक आहे तेवढी सोडून द्यावी, असं आपण करू शकतो. किंबहुना असं करावं असं मी सुचवेन. ही एक आपल्याला मिळालेली संधी आहे, असा जर आपण अप्रोच ठेवला तर नक्कीच आपल्याला त्याच्यापासून कमी त्रास होईल. सध्याचा लॉकडाऊन चौथी फेज आता 18 तारखेला सुरू होईल, चौथं सायकल चालू होईल. आता हे लॉकडाऊन परत 5वं सायकल येणार आहे का माहीत नाही. आतापर्यंत लोकांनी पेशंटली लॉकडाऊनमध्ये राहिले, घरात राहिले, सुरक्षित राहिले. अजून आपल्याला एक सायकल राहायचं आहे घरामध्ये, किमान एक सायकल राहायचं आहे. तर या काळामध्ये आपल्या घरातील व्यक्तींबरोबर जास्तीत जास्त वेळ व्यतीत करण्याची, क्वालिटी टाइम खर्च करण्याची एक मोठी संधी आपल्याला मिळाली आहे. असा जर आपण अप्रोच घेतला तर नक्कीच आपल्याला या लॉकडाऊनचा कमी त्रास होईल. आपण आतापर्यंत अनेक डिसिजन्स घेतले, आपण अनेक प्लॅन्स केले. ते फायनान्सशी संबंधित असतील, ते टुरिझमशी संबंधित असतील किंवा अजून कुठल्या संदर्भात असतील, काही फंक्शन्स करण्याचे प्लॅन्स आपल्या मनात असतील. लॉकडाऊनचा पिरियड हा एक आपल्याला संधीचा भाग आहे. इट्स अन अपॉर्च्युनिटी टू रिव्हिजिट आवर प्लॅन्स, आवर डिसिजन्स अँड आवर पास्ट ॲक्शन्स. आपण जे प्लॅन्स पूर्वी केले होते ते आत्ताच्या आणि भवितव्यातील परिस्थितीला सुटेबल आहेत का याचा आपल्याला विचार आत्ताच करून ठेवता येईल आणि त्याप्रमाणे आपल्याला त्याच्यामध्ये आवश्यक असतील तर बदल करायला लागतील. पूर्वी घेतलेले डिसिजन्स इन्व्हेस्टमेंटशी रिलेटेड असतील, खर्चाशी संबंधित असतील, ट्रिपला जाण्याशी संबंधित असतील, ते खरोखर आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये ते व्हॅलिड आहेत का हाही एक विचार आपल्याला करायला भरपूर वेळ आहे आणि तो विचार आपल्याला करता येईल. पूर्वी आपण ज्या काही ॲक्शन्स घेतलेल्या होत्या, मग त्या कुठल्या कार खरेदी करण्याच्या संदर्भात असतील किंवा रिअल इस्टेटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्याशी संबंधित असतील, तर त्या खरोखर आता गरजेच्या आहेत का याचा विचार करण्याची ही वेळ आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. त्यामुळे दिस इज अन अपॉर्च्युनिटी टू रिव्हिजिट आवर डिसिजन्स, आवर पास्ट प्लॅन्स अँड आवर पास्ट ॲक्शन्स. मी मगाशी म्हटलं तसं आपण कुठला अप्रोच घेतो, आपण त्या गोष्टीकडे कशा दृष्टिकोनातून पाहतो त्यानुसार आपल्या भावना ठरत असतात. त्यामुळे आपण जर हा पॉझिटिव्ह अप्रोच घेतला तर नक्कीच आपल्याला त्याचा कमी त्रास होईल, कमी क्लेश होतील. अजून एक संधी अशी आहे की आता आपल्याला भरपूर निवांत वेळ आहे. विशेषतः नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना तर भरपूर वेळ आहे. जे निवृत्त आहेत ते मुळातच घरातच असल्यामुळे त्यांच्याकडे
आधीपासूनच भरपूर वेळ आहे. पण नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना मी खास हे सांगू इच्छिते की आता अनायासे तुम्हाला वेळ आहे, सक्तीची विश्रांती आहे, सक्तीचं घरी बसावं लागत आहे. तर तुम्ही ज्या काही आतापर्यंत इन्व्हेस्टमेंट्स केलेल्या असतील त्याचा एक व्यवस्थित रेकॉर्ड तयार करणं, त्याचं कंपायलेशन करणं हे आता आपल्याला नक्की जमू शकेल. त्यासाठी आपल्याकडे भरपूर वेळ आहे. तर ते आपण नक्की करू शकतो की जेणेकरून जेव्हा लॉकडाऊन संपेल आणि आपण आपल्या कामाला लागू किंवा अत्यंत निश्चिंतपणे आपण कामाला सुरुवात करू शकू. आतापर्यंतच्या इन्व्हेस्टमेंट्सचं रेकॉर्ड आपल्याकडे असेल, कुठे आपण कमी पडलो, कुठे आपल्याला बदल करायला हवा, हा डिसिजन आपण आता घेऊ शकतो की जो नोकरी पुन्हा सुरू झाल्यावर, काम सुरू झाल्यावर आपल्याला तेवढा वेळ मिळणार नाही. तर हे सर्व कंपायलेशन करण्याची एक उत्तम संधी आहे असं जर आपण मानलं तर नक्कीच त्याचा आपल्याला उपयोग होऊ शकेल. जेव्हा जेव्हा आपण मित्रमैत्रिणींना भेटतो तेव्हा शक्यतो कोविड-19चे जे विषय आपण टाळले आणि एकमेकांबद्दल विचारपूस केली, पूर्वीच्या आठवणी काढल्या, त्या पुन्हा एकदा ज्याला आपण म्हणतो टू रिलीव्ह दोज मेमरीज, पुन्हा जगलो आपण, कॉमन इंटरेस्ट शेअर केले, बालपणीचे अनुभव शेअर केले, तर नक्की त्यातनं आपल्याला आनंददायी अनुभव येईल. आपल्या मनामध्ये एक बिल्ट इन निगेटिव्हिटी बायस असतो, ज्यामुळे निगेटिव्ह घटना ज्या आहेत, ज्या दुःखदायी क्लेशकारक घटना आहेत, त्या आपल्याला आनंददायी सकारात्मक घटनांपेक्षा जास्त आठवतात. या घटना जर विसरायच्या असतील, दुःखदायी क्लेशकारक घटना जर विसरायच्या असतील, तर ज्या प्लेझंट अनुभव आहेत, ज्या प्लेझंट घटना आहेत त्या रिएन्फोर्स करण्याची गरज आहे. पुन्हा पुन्हा त्या आठवून आपल्याला त्यावेळेस कसं वाटलं याचा पुनरानुभव घेऊन आपण त्या गोष्टींचं रिएन्फोर्समेंट करू शकतो, सबलीकरण करू शकतो आणि त्यामुळे निगेटिव्ह घटना, निगेटिव्ह अनुभव बाजूला पडतील आणि ह्या ज्या पॉझिटिव्ह अनुभव, पॉझिटिव्ह घटना या जास्त पुढे येतील. इतरांना मदत करून सुद्धा आपण त्यातनं आनंद मिळवू शकतो. मग हे इतर कोण, तर आपले शेजारी असतील किंवा ज्यांचं पोट हातावर आहे, दैनंदिन रोजच्या रोज भाजी विकणारे लोक असतील. आता आपण पाहतो आहोत की भाज्यांचे दरही कडाडले आहेत, पण ठीक आहे, ही तात्पुरती फेज आहे. सर्व सुरळीत, लॉकडाऊन संपल्यानंतर सर्व सुरळीत होईल आणि भाज्यांचे दर खाली येतील. नुसत्या भाज्या नाही, ती इतर जीवनावश्यक वस्तूंचेही दर खाली येतील. त्यामुळे ह्या लोकांकडनं भाज्या विकत घेऊन त्यांना एक प्रकारे मदत करून त्यातनं आपण आनंद मिळवू शकतो. आपण भूतकाळामध्ये अशाच प्रकारच्या निगेटिव्ह अनुभवातनं जात असताना काय काय केलं होतं हे जर आपण आठवलं तर त्यावेळेस जे आपण केलं होतं ते आताही आपल्याला करता येईल का, हाही एक विचार आपल्याला यावेळेस करता येईल. टीव्हीवरचे चांगले चांगले प्रोग्राम्स बघणं, स्वतःचे छंद जोपासणं, या छंदामध्ये बागकाम असेल, शिवणकाम असेल, गाणी म्हणणं, गाणी ऐकणं, जुनी क्लासिकल गाणी म्हणणं, जुनी क्लासिकल गाणी ऐकणं, त्याच्या कॅसेट्स ऐकणं. सध्या यूट्यूबवर ही सगळी गाणी आपल्याला ऐकायला मिळतात. तर या अशा प्रकारच्या ज्याला आपण करमणुकीचे कार्यक्रम, मनाला रिलॅक्स करणारी जी गोष्टी आहेत, रिलॅक्स करणारे जे कार्यक्रम आहेत ते जर आपण पाहिले तर त्यातनं आपल्याला नक्की आनंद मिळू शकेल. आपल्या मुलांना ॲक्टिव्ह ठेवण्याची ही आत्ताच्या काळात नितांत गरज आहे. त्यांचा मन कुठे भरकटता कामा नये, त्यांना कंटाळा येऊ नये, त्यासाठी त्यांना काहीतरी कन्स्ट्रक्टिव्ह काम देणं, काहीतरी प्रोडक्टिव्ह प्रोजेक्ट्स देणं, असाइनमेंट्स देणं, यासारखी छोटी मोठी कामं पालक करू शकतात की ज्यातनं पालकही ऑक्युपाईड राहतील आणि मुलंही ऑक्युपाईड राहतील. आणि नुसतंच मुलं त्याच्यामध्ये गुंतून राहतील असं नाही, तर मुलांना त्यातनं बरंच काही शिकायला मिळेल की जी संधी त्यांना एरवी शाळा चालू असताना मिळत नाही. सगळा वेळ शाळेत आणि घरी गेल्यावर होमवर्क आणि परीक्षेचा अभ्यास, शनिवार रविवार पूर्ण दिवस परीक्षेच्या अभ्यासाची तयारी. आत्ताची ही एक संधी आहे की ज्या ह्याच्यामध्ये मुलांना आपण ह्या सर्व गोष्टींचा अनुभव देऊ शकतो. त्यांना ॲक्च्युली काही घरातल्या छोट्या मोठ्या गोष्टी करायला शिकवू शकतो. थोडीशी मोठी मुलं असतील तर आईला हाताखाली मदत करणं,
वडिलांना बागकामामध्ये मदत करणं यांसारख्या गोष्टी, घराची साफसफाई करणं, कपड्यांच्या घड्या करणं अत्यंत साध्या साध्या गोष्टी आहेत, पण यातनं मुलांना बरंच काही शिकायला मिळतं. तर या अशा गोष्टींमध्ये आपण आपल्या मुलांना गुंतवू शकतो. आपण दिवसभर काय काय केलेलं आहे त्याचा रोज संध्याकाळी जर आपण रिव्ह्यू घेतला तर आपण कुठे चुकलो, आपल्याला कुठल्या भावना दिवसभरामध्ये अनुभवायला मिळाल्या, त्या सर्वच्या सर्व चांगल्या होत्या का त्यातल्या काही नकारात्मक पण होत्या, याचा एक आढावा गोळाबेरीज आपल्याला करता येईल आणि दुसऱ्या दिवशीचा प्लॅन त्याच्या आधारे आपल्याला तयार करता येईल. त्यामुळे रोज रात्री आपण दिवसभरामध्ये काय केलं, कोणाशी बोललो, कोणाशी कसं वागलो, कोणत्या भावना आपल्याला अनुभवायला आल्या, याचा एक रिव्ह्यू घेणं हे काम आपण आता करू शकतो इन ऑर्डर टू स्टे पॉझिटिव्ह. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ज्यांनी आपल्याला मदत केली किंवा जे आपल्याला त्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये मदत करतायत, मग ती मदत कुठल्याही स्वरूपाची असेल. आता आपण एकमेकांना फार जवळ जाऊन गप्पा मारू शकत नाही, कोणाच्या घरी जाऊन बसू शकत नाही बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टन्सिंग, पण फोनवर बोलणं, फोनवर विचारपूस करणं, कसे आहात, काय आहात, तुम्हाला काही हवंय का, मी चालली आहे त्या बाजूला, किंवा मी माझं सामान ऑनलाईन ऑर्डर करते, तुमचंही काही सामान ऑर्डर करू का, अशा प्रकारच्या मदत करणाऱ्या अनेक शेजारी आपल्या इमारतीमध्ये असू शकतात. त्याचबरोबर मोठ्या लार्जर स्केलवर जर आपण पाहिलं तर डॉक्टर, नर्सेस, पॅरामेडिकल प्रोफेशनल्स, लॅब्स की जे या करोना पेशंटची काळजी घेत आहेत, करोनाशी सामना करायला त्यांना मदत करतायत, अशा सर्व लोकांप्रती आपण कृतज्ञतेचा भाव मनात ठेवून आपल्या मनामध्ये निगेटिव्ह भावना ज्या आहेत त्यांचा निचरा आपण करू शकतो आणि त्यांची जागा नक्कीच पॉझिटिव्ह भावना घेतील. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे लर्न टू लिव्ह विथ द व्हायरस. आपल्याला या व्हायरस बरोबर काही काळ राहावं लागणार आहे याची मनाची तयारी करूयात. हा व्हायरस किती दिवस टिकणार आहे माहित नाही, काही दिवस, काही आठवडे, काही महिने का काही वर्ष. त्यामुळे मनाची आपण तयारी करूयात की दीर्घकाळ आपल्याला या व्हायरस बरोबर राहावं लागणार आहे. या व्हायरसमुळे आपल्या जीवनामध्ये बरीच उलथापालथ पण होणार आहे, बरेचसे डिसिजन्स आपल्याला बदलावे लागतील कदाचित, बरीचशी धोरणं आपल्याला बदलायला लागतील कदाचित, बऱ्याचशा आपल्या भावी योजनांमध्ये आपल्याला कमी अधिक बदल करावे लागतील, अनेक बदल होऊ शकतात आपल्या जीवनामध्ये. याची मनाची तयारी करूयात, म्हणजे जेव्हा प्रत्यक्षात वेळ येईल तेव्हा आपल्याला त्याचा फारसा त्रास होणार नाही. शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये बदल होऊ शकतात, वर्क आणि बिझनेस क्षेत्रामध्ये बदल होऊ शकतात, बँकिंगमध्ये बदल होऊ शकतात. आता या बदलांची पण आपण मानसिक तयारी ठेवूयात, म्हणजे आपल्याला त्या बदलांना सहजपणे सामोरं जाता येईल. काय काय बिहेवियरल चेंजेस आपल्याला करायला लागतील आता आणि कदाचित भवितव्यामध्ये. आपली लाईफस्टाईलमध्ये बदल करणं अत्यंत गरजेचं आहे. जर या व्हायरस बरोबर राहायची मनाची तयारी करायची असेल आणि त्या दृष्टीनं पावलं उचलायची असतील तर पहिल्यांदा आपल्याला आपली लाईफस्टाईल बदलायला लागेल. ही लाईफस्टाईल आपल्या डाएटशी संबंधित असेल, एक्सरसाइज हॅबिटशी संबंधित असेल, सबस्टन्स यूज, धूम्रपान, मद्यसेवन यांच्याशी संबंधित असेल, व्यायामाशी निगडीत असेल. या सर्व लाईफस्टाईलमध्ये बदल करण्याची नितांत गरज आहे आणि तो बदल आपण आतापासूनच करायला सुरुवात करूयात. मेडिटेशन आणि प्राणायाम हा एक उत्तम मार्ग असू शकतो की ज्यामुळे आपण आपली इम्युनिटी तर वाढवू शकतोच, त्याचबरोबर आपल्याला प्रसन्नता आणि आनंद यांचा अनुभव पण त्यामुळे येऊ शकतो. हायजीन रिलेटेड कुठल्या गोष्टींमध्ये बदल करावा लागेल. आता तर आपण त्या पाळतोच, पण भवितव्यामध्ये सुद्धा आपल्याला कदाचित त्या हॅबिट्स कंटिन्यू ठेवावे लागतील. फिजिकल डिस्टन्सिंग कदाचित भवितव्यामध्ये पण आपल्याला ठेवावं लागेल. हँड हायजीन, रेस्पिरेटरी हायजीन, सॅनिटेशन, एन्व्हायरमेंटल हायजीन याही गोष्टी आपल्याला कदाचित पाळाव्या लागतील भविष्यामध्ये. याची मानसिक तयारी आपण आत्ताच करून ठेवूया. फायनान्शियल मॅटर्स मध्ये पण काही बदल होतील आणि त्याची आपण तयारी ठेवूया. म्हणजे फायनान्शियल मॅटर्स कदाचित मनी सेव्हिंगच्या संदर्भात असतील, इन्व्हेस्टमेंट रिलेटेड असतील किंवा नवीन गोष्टी परचेस करण्याशी संबंधित असतील. अर्थात हे
हे सर्व सांगताना या परिस्थितीचं काहीतरी भयावह आणि अत्यंत दारुण असं पिक्चर उभं करण्याचा हेतू अजिबात नाहीये. फक्त एक मानसिक तयारी ठेवणं हे अत्यंत गरजेचं आहे आताच्या काळामध्ये, कारण हा व्हायरस दीर्घकाळ टिकणार आहे हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. पण त्याचबरोबर हेही समजून घेऊयात, हेही लक्षात ठेवूयात की दिस इज जस्ट अ टेम्पररी फेज. व्हायरस नष्ट झाल्यानंतर, त्याच्यावर वॅक्सिन आल्यानंतर, त्याच्यावर औषधोपचार शोधून काढल्यानंतर पुन्हा सर्व काही सुरळीत सुरू होते. पुन्हा शाळा मुलांच्या किलबिलाटाने गजबजून जातील, पुन्हा बाग बगीचे फुलून जातील, पुन्हा रस्त्यावर लोक येतील, वाहनं सुरू होतील आणि शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स पुन्हा लोकांनी भरून जातील. आजचा माझा सत्राचा विषय होता फेसिंग द चॅलेंज ऑफ कोविड-19 पॅन्डेमिक, स्टेईंग पॉझिटिव्ह. थोडक्यात आपण त्याचा आढावा घेऊयात. मी काय काय मुद्दे मांडले ह्याचा मी थोडक्यात गोषवारा आता सादर करते. सर्वात प्रथम म्हणजे कोविड-19 याबद्दलची अधिकृत माहिती अधिकृत सूत्रांकडून प्राप्त करणं हा सगळ्यात महत्त्वाचा पहिला मार्ग असेल. कारण बऱ्याच वेळा या साथीबद्दल चुकीची माहिती, अर्धवट माहिती, डिस्टॉर्टेड माहिती आपल्यापर्यंत पोचते वेगवेगळ्या माध्यमांमधून आणि मग त्याचा आपल्या मनावर एक विपरीत परिणाम होतो. त्या माहितींमुळे आपल्या मनामध्ये भीती, चिंता, निराशा, अपेक्षाभंग या अनेक प्रकारच्या नकारात्मक भावना निर्माण होतात आणि त्यामुळे आपल्याला त्याचा खूप त्रास होऊ लागतो. या नकारात्मक भावनातून आपल्याला जर वर यायचं असेल तर आपल्याला काही गोष्टी लक्षात ठेवणं अत्यंत आवश्यक आहे. सो लेट अस सी व्हॉट आर दोज थिंग्स. मी म्हटलं तसं की या सगळ्या निगेटिव्ह नकारात्मक घटना आठवून नकारात्मक विचार करून आपल्या मनामध्ये, आपल्या मेंदूमध्ये त्याचं एक प्रकारे सर्किट तयार होतं. त्यामुळे या नकारात्मक भावनातून बाहेर यायचं असेल तर हे सर्किट मोडणं आणि त्या जागी नवीन सर्किट बिल्डअप करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि येथे आपल्याला एक लक्षात ठेवायला पाहिजे की हे करत असताना आपल्याला खूप पेशन्स ठेवायची गरज आहे. हे सर्किट जर आपल्याला बदलायचं असेल आणि त्याच्या जागेवर नवीन सर्किट जर आपल्याला तयार करायचं असेल तर त्याला एकमेव मार्ग म्हणजे आपलं लक्ष दुसरीकडे कुठेतरी गुंतवायचं, चांगल्या सकारात्मक गोष्टींमध्ये गुंतवायचं, डायव्हर्ट करायचं की जेणेकरून नवीन सर्किट तयार होईल की जे नक्कीच आनंद देणारं असेल आणि आपल्या मनामध्ये सकारात्मकता निर्माण करणारं असेल. So what to do? Stay away from media presenting misleading picture of the pandemic. अतिरंजित, दिशाभूल करणारं चित्र उभं करणाऱ्या माध्यमांपासून लांब राहा. Be grateful to nature, to people helping corona patients, police helping us stay safe, our neighbors, etc. जे काही लोकांना मदत करतायत, आपल्याला मदत करतायत, रुग्णांना मदत करतायत, त्या सर्वांच्या प्रती एक कृतज्ञतेचा भाव आपण बाळगूयात. हॅव होप. नक्की चांगले दिवस येतील, करोना जाईल, हा विषाणू संपेल आणि त्याच्यावर लस निघेल याची आपण आशा ठेवूयात. आणि आशा ही बऱ्याच वेळा कुठल्याही संकटाला सामना करायला, संकटाशी लढायला आपल्याला सामर्थ्य देते. बी रेझिलियंट. जर नैराश्याच्या गर्तेत गेला असेल तर त्यातनं उसळून बाहेर या, पुन्हा उभारी घ्या आणि पुन्हा नव्या दमानं, नव्या ऊर्जेनं आपलं दैनंदिन काम करायला सुरुवात करूया. हेल्दी हॅबिट्सचं महत्त्व तर आपल्या जीवनामध्ये आहेच. ह्या ज्या हेल्थ हॅबिट्स आहेत या चांगल्या असतील तर त्यामुळे आपल्यामध्ये प्रतिकार शक्ती निर्माण होते, आपलं वेलबिईंग, स्वास्थ्य चांगलं राहतं आणि त्याचा आपल्या कामावर, आपल्या वर्तनावर पॉझिटिव्ह परिणाम होतो. आपला ॲटिट्यूड बदलूयात या पॅन्डेमिककडे बघण्याचा. ही एक संधी आहे असं आपण मानूयात.
संधी कसली? संधी आपल्या फॅमिलीबरोबर वेळ घालवण्याची, संधी नवीन नवीन गोष्टी शिकण्याची, संधी नवीन कॉन्टॅक्ट्स एस्टॅब्लिश करण्याची, संधी नवीन कोर्सेस करण्याची, संधी आपण आत्तापर्यंत ज्या काही इन्व्हेस्टमेंट्स केल्या आहेत त्याचं व्यवस्थित रेकॉर्ड कंपाईल करण्याची. हा जर आपण ॲटिट्यूड ठेवला तर नक्कीच या निगेटिव्ह ज्या इमोशन्स आहेत की ज्या करोनाशी निगडीत आहेत, करोना 19 आणि लॉकडाऊनच्या काळामध्ये निर्माण झालेल्या आहेत, त्या भावना दूर व्हायला मदत होईल. आत्मपरीक्षण करण्याची पण ही एक संधी आहे असं आपण मानूयात. आपले प्लॅन्स, डिसिजन्स, ॲक्शन्स जे आपण याआधी घेतलेले आहेत ते कितपत बरोबर आहेत आणि भविष्यात जे काही बदल अपेक्षित आहेत करोनामुळे, त्या बदललेल्या परिस्थितीमध्ये हे कितपत योग्य ठरतील, व्हॅलिड ठरतील याचा आपण आत्ताच विचार करून ठेवूयात. आणि एक प्लॅन ए जसा आपण आता तयार केलेला आहे तसा प्लॅन बी, प्लॅन सी पण आपण तयार ठेवूयात, म्हणजे ऐन वेळेस आपला त्यात वेळ जाणार नाही. आणि सगळ्यात शेवटी आणि महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला कल्पना आहेच की हा व्हायरस काही लवकर जाणार नाही आहे, तो बरेच दिवस, बरेच महिने, कदाचित काही वर्ष आपल्याबरोबर राहील. त्यामुळे लेट अस लर्न टू लिव्ह विथ द व्हायरस फॉर अ लॉंग टाईम अँड अकॉर्डिंगली चेंज युअर लाईफस्टाईल. मी आता माझे सत्र येथेच संपवते. मी पुन्हा एकदा महाविद्यालयाचे आणि संयोजकांचे आभार मानते की त्यांनी मला या वेबिनारमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्याची संधी दिली. मी आपणा सर्व श्रोत्यांचेही आभार मानते की तुम्ही माझं ऐकून घेतलं. धन्यवाद. Dear friends, it gives me immense pleasure to thank respected Dr. Shobna Abbenkar Madam for her intellectual speech. Definitely, she has guided us about facing the challenges of COVID-19 by staying positive, and that will be very much useful for all of us. Thank you very much, Madam. Dear participant, this was the last lecture of our first day. Now we will stop here. Tomorrow at 10:30 in the morning, we will meet again and we will resume our proceedings. So please be present for tomorrow's session. Thank you. Thank you everyone.